آپ سب کو سلام۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سب خوش ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے آپ نے 4 آیات سنی ہیں، 4 حوالے کلام مقدس میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کروائے ہیں، پڑھائے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے بہت غور سے سنے ہوں۔ تو آج کا جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خدا کی وفاداریوں پر بھروسہ ہے۔ مجھے خدا کی وفاداریوں پر بھروسہ ہے۔ ابھی بیٹا یہ گیت گا رہے تھے کہ مجھے خدا کی وفاداریوں پر بھروسہ ہے، کسی کو رتھوں پر اور کسی کو امراء پر بھروسہ ہے۔ مجھے خدا کی وفاداریوں پر بھروسہ ہے۔ کیوں؟ مسیحی لوگوں کو خدا کی وفاداریوں پر بھروسہ ہے۔ کیوں؟ میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی وفاداریوں پر بھروسہ ہے، امید ہے۔ بھروسہ کا مطلب ہے امید رکھنا۔ خدا کے بندہ کو خدا کی وفاداریوں پر بہت امید ہے۔ ہمیں بھی، آپ کو اور مجھے بھی خدا پر بہت امید ہے، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتے ہیں میں خدا کی حمد کروں گا، اس کی ستائش کروں گا، اس کی تمجید کروں گا اور گیت گاتے ہوئے اس کے فاٹکوں میں داخل ہوں گا۔ اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے امراء پر اور کسی انسان پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں ساری عمر خدا کی حمد و ثنا کروں گا اور جب تک زمین پر میرا وجود ہے میں خدا کی تمجید کروں گا اور خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ خدا پر اس لیے بھروسہ رکھوں گا کہ وہ تا ابد زندہ رہنے والا باپ ہے۔ میں کسی انسان پر بھروسہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مٹی ہے اور وہ خاک میں مل جانے والا ہے، اور جب اس کا دم نکل جاتا ہے تو انسان جو ہے مٹی ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو ہمارا زندہ باپ ہے، جو ہمارا زندہ خدا ہے، میں اس کی عمر بھر تعریف و تمجید کروں گا، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کوئی بھی انسان شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ جیتے جی انسان شکر گزاری کر سکتا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم باپ کے ہاں سو جائیں گے، اور جو سو جاتے ہیں ان کی امید ہوتی ہے، ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میں اٹھوں گا۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں عمر بھر جب تک میرا اس زمین پر وجود ہے میں خدا پر بھروسہ کروں گا۔
اس کی وفاداریوں پر بھروسہ کروں گا۔ یہ اس کی وفاداری ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ بے شک ہم اس وقت کوئی 1 سال کا ہے، کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال کا ہے، اور ہم اس وقت زندہ ہیں اور خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مر جاتے ہیں، جن کے ہاں کوئی امید نہیں ہوتی، وہ لوگ جو ہے وہ ایندھن بن جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ ہمیں خداوند نے بڑی امید بخش دی ہے، بڑا بھروسہ کر کے اس نے بھی اپنے باپ پر بھروسہ کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب خدا نے موسیٰ کی معرفت ملک مصر سے نکال کر ان کو اس شہر میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے وہاں پہنچا دیا، جب اس شہر میں ان کو وہاں پہنچا دیا تو ان کو امید ہونی چاہیے تھی کہ جب ہمیں خدا نے اتنی بڑی غلامی سے، اتنے بڑے سمندر سے، اتنی بڑی مصیبتوں سے، 10 آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، تو کیا وہ آگے بھی ہمیں ہر طرح کی بری باتوں سے، بری شریعت سے، برے کاموں سے ہمیں خدا محفوظ رکھے گا؟ لیکن وہ بھول گئے، وہ خدا کی وفاداری کو، خدا کی محبت کو، خدا کے پیار کو بھول گئے، اور انہوں نے جو ہے مصر کی طرف پھر رجوع کیا۔ میرے عزیزو، جب شاہ اسور سنجریب بادشاہ نے یروشلم کے یہودیوں کو دھمکیاں دیں، ان پر الزام لگائے اور دھمکیاں دی کہ میں یروشلم کو تباہ کر دوں گا اور میں جتنے بھی یہاں لوگ ہیں سب کو مار دوں گا۔ خداوند کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس دھمکیوں کو سنا، شاہ یہودا نے دھمکیوں کو سنا، تو اس اسرائیل کے قدوس باپ کی طرف رجوع نہ کیا، اس خدا پر بھروسہ نہ کیا جو ان کو ملک مصر سے نکال کر، ہر مصیبت سے نکال کر، گرمی میں ان کے اوپر سایہ کرتا تھا اور رات کو ان کے آگے ستون بن کر روشنی دیتا تھا، اس کا بھروسہ نہ کیا، اور راستے میں ان کو من کھلایا، فرشتوں کا کھانا کھلایا، بٹیرے کھلائے، ہر بیماری سے محفوظ رکھا۔ ان کے جوتے جو تھے وہ بھی خراب نہ ہوئے، ان کے کپڑے جو تھے وہ بھی خراب نہ ہوئے، اور اس لولاح کے اور وفادار خدا کے طرف جو ہے وہ لگانا تھی، اس پر بھروسہ نہ کیا، بلکہ پھر مصر کی طرف رجوع کیا، اس کی طرف بھروسہ کیا کہ یہ ہمیں شاہ سنجریب سے چھڑائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کہتے ہیں وہ انسان ہیں، مصری لوگ انسان ہیں، وہ تم اس لیے ان کے پاس گئے کہ ان کے گھوڑے جو ہیں زبردست ہیں، ان کے پاس زبردست سورمے ہیں، ان کے پاس جنگ میں بہت ماہر جو ہے وہ سپاہی ہیں، تم اس لیے ان کے پاس گئے ہیں۔ اور خدا کہتے ہیں کہ میں ان کو بھی
किसी पर है जो हमारी ढाल है, उस पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो फूंके मारते हैं, जो कहते हैं बेटा ये तवीज ले जाओ, जाकर अपने घर में रख लो। रात को मैं सबके घर बैठा हुआ था, उनको बता रहा था कि मैं अपनी साली के घर कराची गया, और मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि दीवारें और पूरा फर्श जो कीलों से छलनी हुआ था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें कील लगाना हो। और वो लड़की 22 साल की उम्र की थी, और उसने, उसकी माँ ने, उसके बाप ने खुदा पर भरोसा नहीं किया, बल्कि कील लगाने टुकवाने वालों पर भरोसा किया, और वो बेटी जो है वो अबलीस ले गया उसको। क्योंकि जब हम अबलीस की पैरवी करते हैं, अबलीस पर भरोसा रखते हैं, तो फिर ये मत ख्याल करें कि हम यीशु के पास जाएंगे। यीशु के पास नहीं जाएंगे, हम यीशु के पास जमीन पर पूरी जिंदगी बसर करके नहीं जाएंगे, क्योंकि अबलीस चाहता है कि ये जल्दी जा मेरे पास पहुंच जाए। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरीर कभी अधिक उम्र ना पाएगा। शरीर कितना भी ताकतवर होगा, कितना भी मजबूत होगा, वो पूरी उम्र पाता नहीं जाएगा। लेकिन खुदा के लोग जिस हाल में भी होते हैं, उस हाल में भी खुदा का शुक्र करते हैं, और शुक्र करते करते वो खुदा लंबी उम्र पाकर पूरी उम्र गुजार कर खुदा के पास जाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं सलीब पर मेरे और आपके खुदावन, उन पर लांतान हो रही है, ताने लगाए जा रहे हैं, उनके साथ हाज़िर वक्त के कायम और सरदार कायम और अमरा और सिपाही और दूसरे लोग जो चिल्ला कर पुकार कर कह रहे थे कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, वो ताने मारते हैं और कहते हैं कि तूने तो औरों को बचाया है, औरों को बचाया है, तू अपने आप को बचा, और तू नीचे उतर आ तो हम ईमान ले आएंगे। तो मेरे चीजों, और कहते हैं ये इसने कहा था कि ये मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। इसने खुदा पर भरोसा किया है। खुदा चाहता तो इसे सलीब पर से उतार लाता, लेकिन खुदा की तो मर्जी थी कि ये मेरे लोगों के लिए खून बहाए और खून बहाकर निजात दे, मेरी सुलह करा दे। बाप की तो ये मर्जी थी बेटे के हक में, लेकिन लोगों की ये मर्जी थी कि ये सलीब पर से उतर आए और हम ईमान ले आएंगे। तो मेरे चीजों, मसीहत इतनी जो है वो सख्त मजहब है। ये ना समझे कि ये ऐनी फैल गया है, ये ऐनी फैला नहीं है। ये लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, 2-2 साल के बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, साल के बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, 5 साल के बच्चों ने शेरों के आगे पढ़कर कुर्बानियां दी हैं, माँ बाप ने कुर्बानियां दी हैं, लोग घरों में रहकर कुर्बानियां देकर जो है मसीहत को आज फैलाया है। मेरे चीजों, ये आसान मसीहत नहीं है। मसीहत में जिंदगी बसर करना आसान नहीं है। जब से यीशु पैदा हुए हैं, उस वक्त से लेकर यीशु आसमान पर मुसीबत उठाकर आसमान पर चले गए, फिर भी मुसीबत ने पीछा नहीं छोड़ा। आज यीशु के लोगों को सताया जाता है, यीशु के लोगों के घरों को जलाया जाता है, यीशु के लोगों को मारा जाता है, उन पर इल्जाम लगाया जाता है, बेटियों पर इल्जाम लगाया जाता है। ये मसीहत ये जो है वो खूबसूरत सेज नहीं है।
खूबसूरत बिस्तर नहीं है, ये कांटों की सेज है, हर तरफ चुभन है, हर तरफ मुसीबत है, हर तरफ दुख है, हर तरफ परेशानियां है। हमें हर वक्त आजमाइश के लिए तैयार रहना है। जब हम आजमाइश में तैयार होते हैं तो फिर हम उस पर भरोसा करते हैं, और जब हमारा खुदा पर भरोसा होता है तो फिर हम अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। जिस तरह यीशु ने कहा कि ऐ बाप, अब मैं अपनी रूह को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं कि स्तिफनस को, जो पहला शहीद था, और उसको लोग पत्थर मार रहे हैं और वो उनकी शिकायत कर रहा है, ऐ बाप, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसको भरोसा था, उसको उम्मीद थी कि मैं जब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया से खुदा बाप के पास चला जाऊंगा, तो मैं जो है कुर्बानगाह के नीचे जाकर आराम करूंगा, और जब वहां पहुंच जाऊंगा तो फिर जब मेरे दूसरे भाइयों का भी शुमार पूरा हो जाएगा तो फिर जो है यीशु आएगा और मुझे और तमाम ईमानदारों को जिंदा करके बाप के पास ले जाएगा। ये मसीहियों की उम्मीद है, ये हमें भरोसा है कि जो ये उनका भरोसा नहीं है जो नामी मसीही है। शराब भी पिए, सिगरेट भी पिए, गालियां भी निकाले, जब गिरी भी करें, बाजारों पर भी जाएं, नाम मसीह है हमारा, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनके लिए ये नहीं है, ताज उनके लिए नहीं है, उम्मीद उनके लिए नहीं है, भरोसा उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए भरोसा है जो अपने घरों में हर रोज खुदा की हमदो सुना करते हैं, और जब चर्च में इबादत का वक्त होता है तो इबादत में आकर इबादत करते हैं, चर्च में आकर इबादत करते हैं। तो उन लोगों के लिए भरोसा और उम्मीद है कि जब हम उठेंगे, जब हम यीशु की दूसरी आमद में नरसिंगा फूंकते हुए उठेंगे, और जो जीते होंगे उनसे पहले हम उठकर हम फजा में उठ जाएंगे, और जो जिंदा होंगे वो पल भर में बदल जाएंगे, वो भी फजा में उठकर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। ये उनके लिए उम्मीद है जो ईमानदार, रास्तबाज, जो उसकी वफाओं पर भरोसा करते हैं, ये उनके लिए उम्मीद है। हमें उसी खुदावंद ने उम्मीद दिलाई हुई है कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम भी होगे, और जो मेरे लोग होंगे वो मेरे साथ होंगे, और जो आज भी जो यीशु पे शहीद होते हैं वो उसकी बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं। और हम शाही कामों का फिरका हैं, हम बादशाह के बेटे हैं, हम शहजादे हैं, ना कि हम जो है फकीर हैं, बल्कि हम शहजादे हैं। हम हर खुदा की वफादारी के जो है वो हम मालिक हैं। हमें खुदा ने बख्श दिया है कि जाओ जाकर अंजीर की मनादी करो। तो मेरे चीजों, हमें अंजीर को सुनना है, खुशखबरी को सुनना है, उसको दिल की गहराइयों में ले जाना है, उस पर अमल करना है, उसकी वफादारियों पर अमल करना है, क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा है और मेरा और आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरी तरफ लौट कर मेरे पास आएगा। क्योंकि वो आज भी हमें बाजू फैलाए। अगर आप गौर से आंखें बंद करके यीशु को देखें तो आज भी वो मेरा और आपका इंतजार है। मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, बेटा मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास को बुझा। वो हम पर भरोसा रखता है, वो हम पर उम्मीद रखता है कि मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, मैंने इनके लिए कोड़े खाए हैं, मैंने इनके लिए अपनी दाढ़ी
जो है खींचने वालों को दे दी है। मैंने इनके लिए अपने मुंह पर थप्पड़ खाए हैं, मैंने कोड़े खाए हैं, मैं जो है इनके लिए अपनी जान के ऊपर जो है वो सलीब उठा ली है। और इसीलिए खुदा का बंदा पतरस कहता है, मेरे यीशु को आपने सीधा जो है वो सलीब दिया। उसको उम्मीद थी कि मुझे उल्टा लटका दे तो मैं तो यीशु को देखता रहूंगा। उसको उम्मीद थी कि जब मैं सलीब दिया जाऊंगा तो ऊपर को देखूंगा तो यीशु मुझे नजर आएगा। हालेलुया। जब आप भी अपने दुखों में मुसीबतों में परेशान होते हैं तो यीशु की तरफ देखेंगे तो यीशु नजर आएगा। हालेलुया। आपको अपने पर भरोसा रखने के लिए कुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि आप लोग खुदावंद पर भरोसा करें, ना कि किसी मज़ार वाले पर भरोसा करें। खुदावंद आपको इस्लाम